اصل حقائق اور مہاجروں کے احتجاجی مظاہرے کا سن کر مجھے ایک انوکھی تجویز سوچی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میری یہ تجویز کارگر ہوتی ہے تو مہاجروں کا احتجاج یکلخت الٹا رخ اختیار کرے گا۔ میں نے محسن کو کہا کہ وہ پوری کشمیری مسجد جائے جہاں قتل ہونے والوں کی تجہیز و تکفین کی تیاری کی جا رہی ہے، اور نہایت چالاکی سے یہ بات پلا دے کہ مرنے والوں نہ تو مسلم تھی اور نہ مہاجر۔ اس کے علاوہ کچھ نہ بولے اور مسجد کے قریب میرا انتظار کرے۔ محسن کے جانے کے 30 منٹ بعد میں نے لڑکوں سے کہا کہ وہ کمرے میں رہے یا بازار کی سیر کرائے۔ یہ کہہ کر میں نے سائیکل رکشہ لیا اور کشمیری مسجد کی طرف چل دیا۔ کشمیری مسجد کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ محسن ایک طرف کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے یہ بات پلا دی ہے، لیکن لاشیں پوسٹ مارٹم ہو کر ابھی تک یہاں نہیں پہنچی۔ قریب 3000 لوگ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ کٹھمنڈو میں کشمیری مسجد کا ہونا عجیب بات تھی۔ اس کے پیچھے کہانی یہ تھی، کشمیر راجے کے ظلم سے کشمیر کا ایک خاندان کٹھمنڈو آ کر آباد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ان کا کاروبار چمکا تو وہ اور بھی کشمیر سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے یہاں ایک محلہ بسایا جس کا نام کشمیری محلہ رکھا اور کشمیری مسجد بنائی، اور اب یہ لوگ مسلمانوں کی بے لوث خدمت کرتے تھے۔ ان 8 مہاجروں کے جنازے کا بھی ان لوگوں نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان میں چند معتبر ایک کوٹی کے لان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، سلام کی۔ ان سے میری واقفیت تو نہ تھی، لیکن وہ لوگ بڑے اتفاق سے ملے۔ میں نے بتایا کہ میں چٹاگانگ میں ملازم تھا، بڑی مشکل سے کٹھمنڈو پہنچا ہوں اور اب پاکستان جانے کے انتظار میں ہوں۔ چونکہ گزشتہ رات بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، لہٰذا جلد ہی موضوع اس طرف پھر گیا۔ میں نے باتوں کے درمیان کہا، میں نے یہاں آ کر سنا ہے کہ مرنے والے غیر مسلم تھے۔ وہ سب میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، بے شک یہ افواہ ہی صحیح، مگر تصدیق کرنے میں کیا حرج ہے؟ الغرض میرے زور دینے پر وہ رضامند ہو گئے اور بولے کہ غسال کو کہہ دیں گے کہ غسل دیتے وقت اس بات کی اصلیت کو جانچے۔ میتیں آئی تو مہاجروں کا جوش و خروش بہت بڑھ گیا۔ یا بھی پاکستانی سفارت خانے اور نفاذی پولیس کے خلاف نعرے بازی شروع ہو گئی۔ وہاں 2 غسال تھے، دونوں ایک ایک میت کو غسل دینے کے لیے میت کے پاس گئے، اور معتبرین کے کہنے کے مطابق جب انہوں نے ان میتوں کو چیک کیا تو لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ غسال نے سرگوشے میں مہاجروں کو بتایا کہ یہ دونوں غیر مسلم ہیں۔ مہاجروں کو یقین نہ آیا تو 2 معتبر بزرگوں نے آٹو کو خود چیکا تو آٹو غیر مسلم تھے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اب غسل دینا تو ایک طرف ہوا، پر سب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ لاشوں کو ہندوں کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے دونوں بزرگوں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ سفارت خانے چل کر لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ کرے، ورنہ وہاں صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ وہ دونوں فوراً ایک کشمیر کی موٹر گاڑی میں سفارت خانے پہنچے اور پولیس کے میگا فون سے لوگوں کو مرنے والوں کی اصلیت بتائی تو وہ سب مہاجر یہ بات سن کر خاموش ہو گئے اور کشمیری مسجد کی طرف چل دیے تاکہ خود یہ تماشا دیکھ سکے۔ اب یہ موضوع شروع ہو گیا کہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ میرا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اب میرے لیے ضروری تھا کہ لڑکوں کو بحفاظت فوراً نیپال سے نکالنا۔ یہ سوچ کر میں ہوٹل واپس چلا آیا۔ میں قیصر کے کمرے میں گیا اور کہا کہ سب لڑکوں کو یہی بلا لو۔ جب سب جمع ہو گئے تو میں نے انہیں کہا کہ سفارت خانے کو بچانے کے لیے میں نے مرنے والوں کو ہندو ظاہر کروا دیا ہے۔ پہلے تو مہاجر سمجھ کر خانہ پوری ہونا تھی، مگر اب نفاذی پولیس اپنی تفتیش کا دائرہ بڑھائے گی اور مکتی بانی والوں کو یہاں بھیجنے اور انڈین سفارت خانے بھی چپ نہیں رہے گا، لہٰذا تم لوگوں کو اب جلد از جلد نیپال سے نکلنا ہوگا۔ میں نے انہیں فی کس 10,000 روپیہ دیا اور سفری اخراجات الگ اور شاپنگ کے لیے الگ پیسے دیے، اور کہا کہ تم لوگ فوراً شاپنگ کر لو۔ ان کو بازار بیچ کر میں نے قیصر کو کل صبح پھر گنج کے لیے ٹکٹ بک کروانے کے لیے بھیج دیا۔ نذیر اور عارف کے لیے الگ الگ خط بھی قیصر کو دیے، جس میں نذیر کو 1 ماہ کے اندر مکان خالی نہ کرنے کی صورت میں وہ جیسا چاہے ان کے ساتھ سلوک کرنے کا اختیار دے دیا، اور ایک خفیہ طور پر حبیب کو دینے کے لیے بھی لکھ کر دیا، جس میں مکان خالی نہ کرنے کی صورت میں نذیر اور لڑکوں کے ریئیکشن کا لکھا۔ میں نے قیصر کو کہا کہ دہلی پہنچ کر مجھے اپنی خیریت سے پہنچنے پر انفارم ضرور کرے۔ دوسری صبح 8 بجے ہی مجاہدوں کا قافلہ کٹھمنڈو سے پھر گنج کی طرف روانہ ہو گیا۔ چوتھے روز دہلی سے مجھے نذیر اور عارف کی کال آئی، جس میں قیصر گروپ کا خیریت سے دہلی پہنچنے کا بتایا گیا۔ نذیر کو میں نے بتایا کہ میں آپ کی پریشانی کی مکمل تفصیل محکمے کے لکھ کر بھیج دی ہے، لہٰذا 1 ماہ میں امید ہے کام ہو جائے گا۔ متبادل جگہ سے سرائے بیرم خان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ ایک مکان ڈھونڈ کر ان کو وہاں سیٹل ہونے میں ان کی مدد کرے۔
काठमांडू में माजिरों के रूप में छुपे अभी तक 9 दरिंदों को ठिकाने लगाया था। मुझे यकीन था कि अभी मजीद भी होंगे जो या हमारी नज़रों में नहीं आए या फिर फैमिलीज की शक्ल में होंगे। भारतीय सफारत खाना 200 अफराद पर मुश्तमिल था, जबकि पाकिस्तान का सफारत खाना 18 अफराद पर मुश्तमिल था। और भारतीय सफारत खाने की आड़ में वो न सिर्फ निफारी बल्कि चीन के भी जासूसी करते थे। चीन ने काठमांडू से अपनी बॉर्डर लाइन तक 134 मील लंबी सड़क बनाई थी जो बिल्कुल सीधी थी। ये सड़क चीनी इंजीनियर का शाहकार थी। दिल्ली से आए हुए लड़कों ने अपना एड्रेस अलीगढ़, इलाहाबाद और लखनऊ लिखवाया था और होटल किराया मैं खुद ही पे किया था, जो बाद में मैंने उनको दे दिया। बाद दोपहर मोहसिन भी होटल छोड़कर गेस्ट चला गया। इसने 12,000 रुपये लगाए थे जो मैंने इससे बाद में वापस कर दिए। पैसे की कमी इंसान को कमज़ोर बना देती है। मैं नहीं चाहता था कि मोहसिन जैसा इंसान कमज़ोर पड़े, इसलिए इसका सारा खर्चा मैंने खुद उठा लिया। मैंने मोहसिन की ड्यूटी लगाई थी कि वो रोज़ाना सफारत खाने जाए और सारे दिन की रिपोर्ट शाम को होटल में आकर दे। इन 8 लाशों को इंडियन सफारत खाने के हवाले कर दिया गया था, जिन्होंने उसे जला दिया था। एक हफ्ते में ने नहायत खामोशी से गुजारा। मेरा नेपाल में मिशन अभी शुरू हुआ था। सफारत खाने ने अब इन 9 बंदों को रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी थी और अब रजिस्ट्रेशन दोबारा की जा रही थी। रजिस्ट्रेशन बहुत सख्त कर दी गई थी। एक कमरे में ले जाकर कपड़े उतार कर पहले इस बात की तस्दीक की जाती थी कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, फिर रजिस्ट्रेशन होती थी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शवाहिद देने पड़ते और साथ कम अज़ कम 3 माजिरों की गवाही लाजिमी करार पाई गई। चूँकि मोहसिन और बुजुर्ग शायर भी इस ज़मरे में आते थे, लिहाजा मैंने उनको पुराने रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर काफ़ी दिनों के बाद सफारत खाने गया। मेरा ख्याल था कि सफ़ीर मुझे अच्छी तरह नहीं मिलेगा, मगर वो एक सियासी आदमी था। वो मुझे बड़े तफाक से मिला और चाय बिस्किट मंगवाए। बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू की। मैंने उनको इन दोनों रजिस्ट्रेशन कार्ड देकर पूछा कि सफ़ीर साहब, क्या इन दोनों को मेरी ज़मानत पर न्यू रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल सकते हैं? सफ़ीर ने कहा कि क्यों नहीं, आपके कहने पर तो हम 2000 माजिरों के रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार है। ये कहकर इसने घंटी बजाई। इसका पीए अंदर आया तो सफ़ीर ने इन दोनों रजिस्ट्रेशन कार्ड देते हुए कहा कि इनके न्यू कार्ड बनवा दो। वो 15 मिनट में कार्ड बना कर ले आया। सफ़ीर से काफ़ी देर गपशप के इसने इतने दिन न आने का गिला भी किया। मैंने कहा बस कुछ मजबूरी थी इसलिए नहीं आ सका। इसके बाद मैंने न जाने की इजाज़त चाहिए तो उसने कहा कि शाम का खाना वो मेरे साथ खाए, मेरे घर में कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैंने इनकार किया तो उसने ज़द पकड़ ली, नहीं आपको आना होगा, माजिरों के बारे में कुछ गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा ठीक, मैं शाम को आ जाऊंगा। चूँकि सफारत खाने की नाअहली पहले ही सामने आ चुकी थी, अब सफ़ीर मेरे साथ बातचीत करके कुछ राज उगलवाना चाहता था। मगर मैं काले चोर पर तो भरोसा कर सकता था, मगर सफ़ेद एंड कंपनी पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। शाम को मैं सफ़ीर के घर गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद इसने मुझे 2 पैकेट सिगार के दिए जिस पर लिखा हुआ था, जिस पर पाकिस्तान की सरकार निशान और स्पेशली ब्लेंड्स पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुदा हुआ था। मैंने सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया और अपना पैकेट खोलकर सिगार निकालना चाहा तो सफ़ीर ने मना करते हुए कहा कि ये तुमने अपने होटल जाकर खोलकर पीना या पर पीने के लिए मेरी तरफ से। इसने पैकेट से सिगार निकाल कर मुझे दिया। हर सिगार सिल्वर की एक ट्यूब में बंद थी जिस पर भी पहले वाले अल्फाज दर्ज थे। अब बताइए ये कैसे किया? सफ़ीर साहब ने मुस्कुराते हुए गहरी निगाह से मुझे देखते हुए कहा। मैंने आगे से सवाल किया सब कैसे किया? मैंने अनजान बनते हुए इसे वही सवाल पूछ लिया। सफ़ीर शायद ये जान करके मुझे सवाल की समझ नहीं आई, बोले भाई मैं इन 8 गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ जो गुज़श्ता एक रात में 8 कत्ल कर दिए गए। मैंने जवाब दिया कि सुना तो मैंने भी है। सफ़ीर ने कहा मैं तो समझता था कि ये कार्रवाई आपने करवाई है क्योंकि गैर मुस्लिम माजिरों के रूप में हमारे सफारत खाने में रजिस्टर्ड थे और इनके एक्सपोज होने के बाद नए सर से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जा रही है। मैंने कहा मेरा इस सारे वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ एक पिस्टल है, जबकि मेरे इत्तलाक के मुताबिक उन्हें खंजरों और कुकड़ियों से मारा गया है। मैं अकेला भला एक रात में इन 8 को कैसे मार सकता था? मेरा नफी में जवाब सुनकर सफ़ीर साहब मुखसमे में पड़ गए। अब सवाल करने की बारी मेरी थी। मैंने कहा चलिए छोड़ दिए, वो कमबख्त काबिल थे सो वो तो मर गए, मगर आपके लिए मुसीबत खड़ी कर गए। नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करके आइंदा आने वाले जासूसों को पकड़ लेंगे, मगर जो जासूस आप पहले पाकिस्तान बेच चुके हैं इनका किया होगा। मैं तो समझता हूँ कि इन 8 गैर मुस्लिम जासूसों के सफारत खाने में बहैसियत मुस्लिम माजिरीन रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं इस वाक़े की तफसील और पहले से भेजे गए माजिरीन को मशकूक आइडेंटिटी की रिपोर्ट भेजूँगा तो वह तो ज़लज़ले आ जाएंगे।
सपीर साहब जो ही समझ बैठे थे कि वो बड़ी काविश से मुझे राह रास्त पर लाए हैं। मेरी बात सुनकर बिल्कुल बुझ गए। काफ़ी देर सोचने के बाद बोले, इन हालात में मुझे तो इस्तीफा देकर वापस चले जाना चाहिए। और तो कोई बात नहीं, बस एक परेशानी है कि मेरी दोनों बच्चियां यहाँ कॉलेज में पढ़ती है, इनका एक साल ज़ाया हो जाएगा। इधर कमबख्त मेरा दिल जो जालिम के लिए भी नरम हो जाता था या भी नरम होने लगा। इसी दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने गोरखपुर में जिन सिविलियन से टिक्सियाँ छीनी थी, इनको जिंदा रखकर मैंने भारतीय इंटेलिजेंस के लिए सुराख छोड़ दिया था। मैंने सफीर को कहा, आप घबराई मत, मैं पाकिस्तान रिपोर्ट तो ज़रूर भेजूंगा, मगर ऐसी नहीं कि आपकी बच्चिया का साल ज़ाया हो। आप परेशान मत हो, ये कहकर मैं खड़ा हो गया। सफीर ने बड़ी अपनायत से मेरे कमरे में हाथ डालकर मुझे अपनी गाड़ी में होटल छोड़ने के साथ चल दिया। मैंने सफीर से कहा कि आप ऐसा करें कि इन तमाम महाजिरीन की परसतें जिन्हें आप आज तक काठमांडू से पाकिस्तान भिजवा चुके हैं, मुझे कल तक दे दे। इसने हामी भर ली। तीसरे रोज़ सफीर ने मुझे पाकिस्तान भेजे गए माजिरों की मुकम्मल तफसील के साथ परसतें दी। मैंने उन परसतों को दो कापियाँ बनवा कर एक एक अपने पास रख लिया और एक पाकिस्तान भिजवा दी। और साथ मैंने अपने पूरे किए गए मिशन की तफसील रिपोर्ट और सफारत खाने की नई पॉलिसी को सराहा। मैंने ये सफारत खाने वाली रिपोर्ट सफीर को पढ़वा कर पैकेट में बंद किया और डाक भेज दी। इसके बाद जब तक मैं काठमांडू में रहा, सफीर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा और सफारत खाने की तरफ से मुतमईन होकर मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो अपने मिशन पर लगा दी। रिपोर्ट में मैंने ख़ास तौर पर लिखा कि ऐसे माजिर जो अकेले फैमिली के बगैर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, इनको तलाश करके इनकी मुकम्मल निगरानी की जाए। हो सकता है इनमें भारतीय जासूस हो। एम्बेसी में पाकिस्तान से आने वाले 10-15 रोज़ पुराने अखबार पढ़कर अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान को दुरुस्त करने वाली सियासी क़ुव्वतें बचे कचे पाकिस्तान किस तरह से जोड़े खोखली कर रही है। आखिरकार काठमांडू पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस, सराय हर जगह पूछगछ की, मगर कुछ हासिल न हुआ। तो उन्होंने इस केस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। जब देखा कि अब ख़तरा नहीं रहा तो मैंने फिर लिस्टें निकाल ली और देखना शुरू किया कि ऐसी माजिर फैमिलीज जिनके मर्द कोई काम भी नहीं करते और अपना खर्चा चला रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, जबकि इनके गिर माजिरों की छोटी चूलियाँ भी मनलाती रहती ही। मैंने खुद इन तस्दीक करने की बजाय मोहसिन की ड्यूटी लगाई और वो फैमिलीज बताई और कहा कि वो इनमें शामिल होकर इनकी छानबीन करे। मेरी हिदायत पर मोहसिन ने अपना मामूल बना लिया। जहाँ भी चंद माजिर जमा होते हुआ जाकर वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देता। अगर कोई इतिराज़ करता वो अपनी कमीज़ उठाकर इनको अपने ज़ख्मों के निशान दिखाता और कहता मैं भी पाकिस्तान से मोहब्बत का दम भरता था, मगर मशरक़ पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि मेरे घर वाले मारे गए और मुझ पर जुल्म किया गया और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ माजिर की सूरत में रह रहा हूँ। अब आगे ये पाकिस्तानी सफारत खाने वाले हम सब पर क्या जुल्म कर रहे हैं। इस तरह प्रोपेगेंडा करते करते मोहसिन को 8 दिन गुजर गए। एक दिन मोहसिन वैसी अदाकारी कर रहा था कि उसे एक माजिर ने बुलाया और अपने साथ एक घर में ले गया, जहाँ पर और भी माजिर बैठे हुए थे। घर बहुत सजाया हुआ था। घर का मालिक बहुत खूबसूरत कालीन पर गाँव तकिया लगाए बैठा था। इसने मोहसिन के साथ वो बहुत अखलाक से बात करते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, हम दूसरी बार माजिर हुए हैं और ये सब कुछ मगरबी पाकिस्तान का किया धरा है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हमख्याल लोगों को जमा करें, फिर मगरबी पाकिस्तान जाकर वहाँ रहने वाले शैतान सिफत हुक्मरानों और लोगों का जीना हराम कर दे। इस महफल में मशरूब और शराब के जाम चल रहे थे। मोहसिन के बयान के मुताबिक वो बहुत देर तक जज्बाती तकरीर करता रहा और हम सबको पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाता रहा। मोहसिन ने बताया कि वह बैठे लोग सच्चे या झूठे दिल से इसके हाँ मिला रहे थे। वो पूरी अपनी मकसद और मिशन तक नहीं पहुंचा, बल्कि पहले आहिस्ता हमारा ब्रेन वॉश करता रहा। महफिल बर्खास्त होने पर उसने सब वहाँ मौजूद माजिरों को 50-50 रुपए दिए और मोहसिन को आइंदा अपनी होने वाली मीटिंग्स में दावत की। मैंने मोहसिन को कहा कि वो वहाँ बाकायदगी से जाए और वहाँ पर जाने वाले माजिरों की क्वाइफ और मशरक़ पाकिस्तान में उनके कारोबार और दीगर मालूमात का पता लगाने की कोशिश करे। मोहसिन अपने काम पर जुट किया और मैंने मोहसिन जैसे बहादुर और पुरखलूस माजिरों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि अकेले मोहसिन के साथ ये काम करना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। अपने दोस्त असद को भी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।